So, hello students, welcome to M Square Maths Mantra. So, basically, it's our lecture number 4 of our topic Inner Product Space, in which I'm providing you proper notes and question practice so that you can score good in GATE and NET exams. Basically, myself, Ayush Gupta, I'm gold medalist from NIT Jaipur in MSc Mathematics. So, let's start our today's lecture. So, today we will cover the PYQs of NET and GATE exams. So, let's see the question number 1. So this question has been asked in 2012 NET examination. In this question, it is given that let zeta be a primitive cube root of unity. Okay, so basically what is given to me? This zeta is basically cube root of unity. So what we can write? We can write here that zeta should be equals to 1 power 1 over 3. It is the cube root of unity. So from here we can write that zeta cube is equals to 1. And we know that in the case of cube root of unity, if we add all the roots, like this has 3 roots, 1, and you can say because it is zeta, so I can write zeta and zeta squared. There are 3 roots because it is a cube root of unity. And if I add all the roots, अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, सब roots को add करता हूँ, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होती है and zeta cube is equals to 1. These are the properties of cube root of unity. Okay, so now let's see in the question what is given to me. A is a matrix like this, which is a diagonal matrix, and it is a symmetric matrix also. And it is given to me for a vector V in R3. Define VA like this, and where VT is the transpose of V. If W is equals to this, okay, so it is given to me that we have a vector W, जो कि हमारे पास क्या है 1, 1 and 1. Then we have to find the WA. Okay, so what is WA here? If I have right here the WA, then what will it be? देखिए हमारे पास वी ए कैसे डिफाइन था, वी ए डिफाइन था रूट ऑफ दिस, तो मैं यहाँ पे डब्ल्यू कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, दिस बिकम्स द स्क्वायर रूट ऑफ, इट इज मॉडुलस वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, देन इट इज ए एंड आफ्टर दैट डब्ल्यू ट्रांसपोज. क्लियर? तो और इसका यहाँ पे हो जाएगा मॉड. कुछ इस तरह से हमारे पास डब्ल्यू ए को मैं डिफाइन कर सकता हूँ. तो चलिए इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख करके देखते हैं कि हमें कौन सा वेक्टर मिलेगा. नाउ लेट्स सी, बिकॉज W क्या है, इट इज अ वेक्टर, सो बेसिकली दिस कैन बी रिटन एज, यू कैन से, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे इसको एज अ वेक्टर लिखूं तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ. ओके, लेट्स सी. देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को रखता हूँ, सो व्हाट वी विल गेट, वी गेट हियर basically what is the first component of W is 1 and the first entry of the diagonal element, because ये हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास एक diagonal matrix है, and diagonal matrix को हम इस तरह से लिख सकते हैं, only the diagonal elements zeta power -1, then it is 1 and then it is zeta. These are the diagonal entries. और क्योंकि जब भी हमारे पास एक diagonal matrix होती है तो हम उसमें डायरेक्ट कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ Z A एंड सॉरी इट इज W, सो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ W A एंड W ट्रांसपोज का, तो मुझे क्या मिल जाएगा, दिस इज 1, देन जीटा इनवर्स, अगेन इट इज W ट्रांसपोज. सो व्हाट इज द W ट्रांसपोज हियर, ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन इट विल बी 1 1 1 लाइक दिस. क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या मिलेगा मुझे, 1 जीटा ट्रांसपोज एंड देन 1, इनका मल्टीप्लिकेशन. सो व्हाट वी आर गेटिंग, अंडर रूट, and in the modulus value this becomes 1 into zeta inverse into 1. Then what is the second component, second component is 1 into 1 into 1. So finally we are getting here only 1, or you can write down whole thing, it is only the multiplication of 1. Clear? Then plus the third component, it is 1 zeta and 1. So what we get here, the third component will be 1 into zeta into 1. So in the modulus value what we are getting, square root of, this becomes mod of zeta power -1 plus 1 plus zeta. तो अगर मैं यहाँ इसको सॉल्व करता हूँ, so what we get here, it is the 1 upon zeta plus 1 plus zeta. So if I take the LCM of zeta, then what we get, it becomes 1 plus zeta square divided by zeta here. Clear? और हमने अभी ऊपर क्या देखा था कि अगर मैं 1 plus zeta square करता हूँ, then we get 0. So what will we get here, we get square root of 0 upon zeta. So clearly this becomes 0. तो यहाँ से WA की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी,
दिस इज द ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर. क्लियर? ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास आया था 2012 में. दिस क्वेश्चन कम्स इन 2012 एंड विद द सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास आया था 2011 में भी एक क्वेश्चन. देखिए इट इज द सेम क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 2011 नेट एग्जाम. In this question it is given that zeta be the fifth root of unity. Clear? It is a fifth root. तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं zeta को लिखता हूँ 1 power 1/5, so I can write basically zeta power 5 is equals to 1. It is the fifth root of unity. और जिस तरह से हमने cube root of unity में किया था इस तरह से यहाँ भी कर सकता हूँ. यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ हमारे पास it is 1 plus zeta square plus zeta cube and plus zeta power 4. This will be our zero. Because cube root of unity में क्या था हमारे पास, अगर वहां पे क्यूब था तो मैं स्क्वायर तक जाता था, और क्योंकि यहाँ पर पावर 5 है तो मैं पावर 4 तक जाऊंगा. सो दिस कंडीशन विल ऑलवेज होल्ड्स. Clear? Okay, so now let's see what is the question. So in this question it is a diagonal entries, so I can write this matrix as, this matrix is nothing but it is a diagonal matrix of zeta power minus 2, zeta power minus 1, it is zeta power minus 1, then 1, then zeta, and then zeta square. This is the diagonal matrix. Then what we have to find? We have a vector v in v5 which is defined like this, and we have to find the w8. W is given to me. Clear? देखिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं. w a को मैं कैसे लिख सकता हूँ? दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ, इट इज द मॉडुलस वैल्यू w मैट्रिक्स a एंड देन w ट्रांसपोज. क्लियर? तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. सो व्हाट वी विल गेट, वी गेट द स्क्वायर रूट ऑफ देन मॉडुलस वैल्यू. व्हाट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ w? फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ w इज 1. देन द फर्स्ट कंपोनेंट इज zeta स्क्वायर. अगेन ट्रांसपोज भी w को लूंगा तब भी इसका फर्स्ट कंपोनेंट 1 ही होगा. सो व्हाट वी गेट, we get 1 into zeta power minus 2 into 1 plus second component is minus 1, and here second component is zeta power minus 1. So this becomes minus 1 into zeta power minus 1 into minus 1. Again third component is 1, and here it is also 1, and then again 1. So clearly we will get only 1 here. Then what is the fourth component? It is 1, then zeta, again 1. So this becomes 1 into zeta into 1 plus, then what we get, the basically it is the fourth component. So the fifth component again it is minus 1. minus 1 into zeta square, again minus 1, because यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, w a and w ट्रांसपोज, तो उसका दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है. So what we are getting, minus 1 zeta square into minus 1 मॉडुलस वैल्यू. तो देखिए इसको सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ, इट्स द मॉडुलस वैल्यू, zeta power minus 2 minus minus plus, so it becomes zeta power minus 1 plus 1, and here what we are getting, let me write down this, plus zeta power 2. तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, so this can be written as 1 over zeta square plus 1 over zeta plus 1 plus zeta square. So this can be written as, it is actually 1 plus zeta square plus zeta cube plus zeta power 4, and which is divided by zeta square under the modulus value. And we know that because it is a fifth root of unity, so this value always exists, like 1 plus zeta up to power 4, this value will be 0. तो यहाँ से मैं क्या रख सकता हूँ इसकी वैल्यू, this value becomes square root of 0 by zeta square, again it will be 0. Clear? So basically option number A is my correct option in this question. Okay, so now let's see the question number 3. Question number 3 में हमसे क्या कहा जा रहा है, let's see. So in this question it is given that basically this question asked in 2012 net examination, and in this question it is given that let V be an inner product space, okay, and consisting of linear polynomials. और polynomial हमारे पास कहाँ पे डिफाइन है, 0 1 से R पे डिफाइन है. That is V consist of polynomials P of the form like this, यानी कि हमारे पास जो भी polynomial है वो linear polynomial है with the inner product defined by this. Okay, so हमारे पास एक inner product define है जिसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. कैसा inner product है, अगर मैं किन्हीं दो polynomials का inner product करूंगा, so it is defined by 0 to 1,
देन इट इज p ऑफ x q ऑफ x dx, इस तरह से डिफाइन है। नाउ एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ v, तो हमें ये यहाँ पे देखना है कि ये जो चार सेट हमारे पास गिवन है इसमें से ये कौन सा ऑर्थोनॉर्मल सेट बना रहा होगा। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा विच इज ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोनॉर्मल। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ऑर्थोनॉर्मल, मैं कब कहता हूं कि अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर है, लेट्स सपोज इफ आई हैव वेक्टर v1 एंड वेक्टर v2, तो मैं कब बोलूंगा कि ये मेरे पास एक ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स होंगे, जब इनका इनर प्रोडक्ट, यानी कि अगर मैं इनर प्रोडक्ट ऑफ v1 v2 करूं तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ जाए एंड नॉर्म ऑफ v1 1 आना चाहिए एंड नॉर्म ऑफ v2 भी हमारे पास 1 आना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई होती है देन वी कैन से दैट दीज वेक्टर्स आर ऑर्थोनॉर्मल। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास कौन से वेक्टर्स हैं, वी हैव 1 एंड x। सो इफ आई ट्राइड द इनर प्रोडक्ट ऑफ 1 and x, then what we get is under, basically it is the integration 0 to 1 into x dx. So we get here x square by 2 from the limit 0 to 1, so it is basically 1 by 2. So this value is not getting equals to 0, so that's why, because ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होगा, so we can say that this is not orthonormal. तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। लेट्स चेक द सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। सो ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास क्या है, वी हैव टू वेक्टर्स हियर 1 एंड x स्क्वायर रूट ऑफ 3। चलिए इसको भी चेक करते हैं। अगर मैंने इन दोनों पॉलिनोमियल्स का इनर प्रोडक्ट लिया तो ये हमारे पास 0 आना चाहिए, क्लियर, तभी ये हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल होगा। सो लेट्स चेक व्हाट वी आर गेटिंग, इट इज इंटीग्रेशन 0 टू 1 टाइम्स x स्क्वायर रूट ऑफ 3 dx। सो व्हाट वी गेट, रूट 3 हमारे पास बाहर आ जाएगा, दिस बिकम्स x स्क्वायर बाई 2, so it becomes from 0 to 1, so this is a square root of 3 by 2, which is also not equals to 0, so which means B option is also incorrect, clear। now what about the option number C। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ मैं, let me erase this part। now let's see the option number C। तो इसमें हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, one is basically 1 and another is this, so it is 2x minus 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्लियर। अगर मैं इन दोनों का इनर प्रोडक्ट लेता हूँ लाइक 1 एंड 2, यू कैन इफ आई मल्टीप्लाई रूट 3, सो इट बिकम्स 2 रूट 3x माइनस रूट 3, इसका हम क्या करते हैं इनर प्रोडक्ट। सो व्हाट वी आर गेटिंग, इंटीग्रेशन 0 टू 1 मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं यहाँ पर 1 का 2 रूट 3 x माइनस रूट 3 से इंटू dx, सो व्हाट वी आर गेटिंग, दिस बिकम्स 2 रूट 3 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास रूट 3 एक्स फ्रॉम द लिमिट 0 to 1। सो आफ्टर getting limit, what we are getting, it is the root 3 minus root 3 and then it is 0, so basically this value is going to be 0, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है। नाउ चेक दीज प्रॉपर्टीज आल्सो। अगर मैं यहाँ पे v1 का नॉर्म निकालता हूँ, लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट वेक्टर, बेसिकली फर्स्ट वेक्टर इज 1, so if I calculate the norm of 1, actually v1 is 1, तो norm of 1 किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, बेसिकली नॉर्म हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ 1 comma 1, clear। so what we are getting, it is the under root 0 to 1, 1 comma 1 is 1, so it is dx, and this value can be written as, basically it is x from the limit 0 to 1 under root, so this will be 1 square root of 1, so yes, यानी कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वेक्टर तो 1 के बराबर आ रहा है, क्या सेकंड वेक्टर भी हमारे पास इस तरह से आएगा, लेट्स चेक। देखिए अब हम क्या करते हैं, नॉर्म ऑफ v2 निकालते हैं। तो नॉर्म ऑफ v2 एक्चुअली में यहाँ पे किस तरह से डिफाइन होगा, स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ v2 कॉमा v2 लाइक दिस। तो यहाँ पे v2 है क्या, v2 है हमारे पास ये क्वांटिटी, दिस इज अवर v2, तो दिस इज 2 रूट 3x माइनस रूट 3 का नॉर्म किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट, basically this is the square root of 0 to 1 and here it becomes basically 2 root 3 x minus root 3 multiplied by the same quantity, तो यानी कि उसका स्क्वायर कर देता हूँ मैं यहाँ पे and it is dx। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन हियर।
इंटीग्रेशन 0 to 1, और हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर रूट को ओपन करते हैं. सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर 4 into 3, so it is 12x square plus 3, and it is 2 to the 4, and then it is 12, so minus 12x is the square into dx. इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो अगर मैं x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करता हूँ, इट बिकम्स x क्यूब बाई 3, सो x क्यूब बाई 3, सो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, सो दिस बिकम्स 4. सो हियर वी आर गेटिंग 4x क्यूब plus it is 3x, wait students, yes, so basically it is 3x minus, this becomes x, so x square by 2, so 2 6 ja, so it becomes minus 6x square from the limit 0 to 1. Clear? So let's see what we are getting here. Okay, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, अगर मैं आपको देखूं यहाँ, let's see, let's put the limits. So we're getting 4 plus 3 minus 6, and 0 is 0, so it is basically 7 minus 6. So yes, again we are getting 1 here, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1, so स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज अगेन 1, so v2 का नॉर्म भी हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, so this property is basically satisfied. थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू. व्हाट अबाउट द फोर्थ वन, चलिए फोर्थ को भी चेक करते हैं, दैट इज 1 and x minus half. लेट्स सी हियर ऑप्शन नंबर डी. तो क्या वेक्टर्स हैं हमारे पास, 1 and x minus half का अगर मैं इनर प्रोडक्ट लेता हूँ, सो व्हाट वी आर गेटिंग 0 to 1, 1 into x minus half dx, so this becomes x square by 2 minus x by 2x, and from the limit 0 to 1, so this becomes basically it is 1 by 2, and here it is basically minus 1 by 2. So yes, this value is going to be 0. तो ये तो हमारे पास 0 हो गया. और अगर मैं देखता हूँ norm of 1, so it is also going to be 1. हमें चेक करना है इसका norm. क्या x minus 1 by 2 का norm हमारे पास 1 होगा? So let's check. यहाँ पे अगर मैं देखूँ, so this can be written as the inner product of x minus half and x minus half. So let's check it. मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ अलग से. So this becomes 0 to 1, and it is x minus half into x minus half, so it is whole square into dx. चलिए ये मैं यही सॉल्व कर लेता हूँ. So this becomes square root of 0 to 1 x square plus b square minus 2ab, so it becomes minus x here into dx. Let's solve this. So this becomes square root of, basically it is x cube by 3 plus x by 4 minus x square by 2 here from the limit 0 to 1. So this becomes square root of, basically it is 1 by 3 plus 1 by 4 minus 1 by 2, and this value is not equals to 1. So clearly norm जो हमारे पास होगा second norm 1 के इक्वल नहीं आ रहा है, so that's why this is not orthogonal. So correct option in this question will be C is my correct answer. Now let's see this question. This question has been asked in 2013 net examination. In this question it is given that consider R3 is our vector space with a standard inner product. What is the meaning of standard inner product? ये हमने लेक्चर नंबर 1 में सीखा है कि इसका मतलब होगा कि कंपोनेंट वाइज इनर प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ किन्हीं भी दो वेक्टर्स को लेता हूँ R3 में से, लाइक V and W, so this can be written as summation I is equals to 1 to 3 VI WI. This is the standard inner product. Clear? Okay. Then it is saying that let W be the subspace of R3 by this vector. So overall हमारे पास W क्या given है? W हमारे पास है, it is the subspace. So we can write like the span. So देखिए अगर मैं यहाँ पर W को लिखूँ, so I can write W is nothing 1 0 and minus 1. It is a subspace. Then which of the following is the basis for the orthogonal complement of W? Now what is the meaning of orthogonal complement? इसका मैं यहाँ what is the symbol? मैं यहाँ लिख सकता हूँ W orthogonal complement like this. Basically what is the definition of orthogonal complement? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसकी definition, तो definition क्या होती है? तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास ऐसे वेक्टर्स आते हैं V belongs to V3, मींस वेक्टर स्पेस के ऐसे वेक्टर्स आते हैं सच दैट कि अगर मैं उनका इनर प्रोडक्ट लेता हूं अपने
W के एलिमेंट्स के साथ, और यहाँ पे W का एलिमेंट क्या है, W का एलिमेंट हमारे पास ये है। तो अगर मैं इनका यहाँ पर क्या लेता हूँ, इनर प्रोडक्ट 1 0 एंड -1 के साथ, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होनी चाहिए, लाइक दिस सेट इज द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। और मुझसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है बेसिस के बारे में। तो अगर मेरे पास मुझसे बेसिस के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब कि हमारे पास दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए बेसिस के लिए। पहले तो हमारे पास ये Li होना चाहिए एंड पूरे पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन करना चाहिए, तब मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारे पास एक बेसिस बनाएगा। क्लियर। ओके, सो बिकॉज यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी और जानते हैं, वी नो दैट कि डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट विल ऑलवेज इक्वल्स टू द डायमेंशन ऑफ R3, जो कि हमारे पास वेक्टर स्पेस है। और यहाँ पे W में कितने एलिमेंट हैं, ओनली वन, विच इज अ सबस्पेस, यानी कि इसकी डायमेंशन तो यहाँ पर 1 हो जाएगी। So from here we are getting 1 plus the dimension of W complement is equals to dimension of this is 3। तो यहाँ से मेरे पास dimension of W complement क्या मिल गया, that is 2। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही हमारे पास एलिमेंट्स हो सकते हैं। So which means ऑप्शन नंबर डी तो हमारे पास एज इट इज इनकरेक्ट हो गया बिकॉज इट हैज 3 एलिमेंट्स। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर सिर्फ 2 एलिमेंट्स। अब हमें देखना है कि क्या इनमें से कौन सा हमारे पास एलाई हो रहा है। जो हमारे पास एलाई होगा वो हमारे पास बेसिस बन जाएगा। क्लियर। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अगर मैं इस वेक्टर को अल्फा मान लेता हूं और इस वेक्टर को बीटा मान लेता हूं, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा। तो ये तो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, बीटा डिपेंड्स ऑन अल्फा और यू कैन से अल्फा डिपेंड्स ऑन बीटा, सो इट इज नॉट linearly independent, they are dependent vectors. Now what about the this vectors, let's see। अगर मैं यहाँ पर इन वेक्टर्स का W के जो हमारे पास वेक्टर हैं उनके साथ इनर प्रोडक्ट लेता हूँ, लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग इन ऑप्शन नंबर ए। If I have taken the inner product of 1 0 1 means this vector and W vector this, इनका इनर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इनका इनर प्रोडक्ट हमारे पास 0 आना चाहिए। लेट्स चेक, इट्स द फर्स्ट वेक्टर एंड द W vector is 1 0 -1। क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 1 into 1 0 into 0 and 1 into -1, so 1 -1 it is 0। यस, पहले वेक्टर तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। व्हाट इज द सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर हो गया हमारे पास 0 1 0 कॉमा 1 0 -1। लेट्स चेक, सो इट इज 0 प्लस 0 एंड प्लस 0। यस, ये हमारे पास 0 आ रहा है, यानी कि ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। सो विच मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट अबाउट बी, बी को भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। लेट्स सी, अगर मैं बी के एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट लूँ लाइक 1 2 एंड 1, inner product with this, so this becomes 1 0 -1, this value becomes 1 plus 0 and again it is -1, it is also 0। what about the second one, अगर मैं इस वेक्टर की बात करता हूँ, so that is 0 1 1 inner product with 1 0 -1, so what we are getting here, let's see, this becomes 0 0 and -1, it is not equals to 0 because यहाँ पे हमारे पास -1 आ रहा है, so which means this option is incorrect in this question। Clear? So the correct option will be A is my correct answer in this question. Thank you.